Okay, so we'll continue with that last topic, uh, the inverse Laplace transform using partial fraction, and the last topic is the solution of linear differential equation, okay, using the Laplace transform. Okay, so I'll quickly repeat one more time this topic, which is the partial fraction. Okay, so first remember, this partial fraction is possible only when the degree of numerator is strictly less than degree of denominator. In that case only you can find the partial fraction. Okay, so that is the first condition. Next is what? So, yeah, and these are the different cases under which you can write the partial fraction. Okay, so if that factor is linear, then you can write a upon first factor plus b upon second factor. In second case, if that linear factor is, if the linear factor is present with the repetition, then you have to write the corresponding term as b upon with the power 1. So start from the first power, so 1 next power is 2, like this. अगर यहाँ पे cube आता है, then you have to write here b upon s plus b, means b upon first power, c upon second power, and d upon third power, like this. ठीक है? So in case of repetition also you can write the partial fraction. Okay, so this is all about linear factor, and mostly the examples are there on this linear factor only. ज़्यादातर आपको linear factor के ही examples आने वाले. ठीक है? So the non linear factor की कुछ ज़्यादा मतलब वैसे भी example नहीं आने वाले आपको पैटर्न में, बट स्टिल फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज, और अगर कहीं पे आ जाता है एग्जाम में, सो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन इजीली सॉल्व एग्जांपल्स ऑन दिस नॉन लीनियर फैक्टर ऑल्सो. ठीक है, सो नॉन लीनियर फैक्टर मीन्स दिस. ओके, सो इन केस ऑफ नॉन, यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस बी इज अ नॉन लीनियर फैक्टर, और लीनियर फैक्टर मतलब डिग्री 1 का फैक्टर होता है. नॉन लीनियर फैक्टर की डेफिनेशन सिंपली क्या है? इट्स अ फैक्टर हुज डिग्री स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 1. ओके, एंड इन केस ऑफ नॉन लीनियर फैक्टर और which cannot factorize into reals. अब देखो एस स्क्वायर प्लस बी रियल में फैक्टराइज नहीं होता, एस स्क्वायर प्लस बी आपका रियल में फैक्टराइज होता नहीं, क्योंकि इसका फैक्टराइजेशन क्या है? एस माइनस आई बी इंटू एस प्लस आई बी. देयरफॉर इट इज अ नॉन लीनियर फैक्टर एस स्क्वायर प्लस बी. ठीक है, एंड इन केस ऑफ दिस नॉन लीनियर फैक्टर व्हाट वी हैव टू डू इज just identify the degree of that non-linear factor. Suppose that degree is n. Okay, if the degree of non-linear factor is n, then in numerator you have to just consider a linear factor of or linear polynomial of degree n minus 1. Okay, so that is the idea for non-linear factor. जो भी उसकी डिग्री है, okay, उसके ऊपर n minus 1 डिग्री की आपको पॉलिनोमियल कंसिडर करनी है. तो यहाँ पे स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस b आपका फैक्टर है, where the degree is 2. Therefore in the numerator you have to consider a polynomial of degree 1. अगर यहाँ पे मैं क्यूब रखता हूँ या थर्ड रखता हूँ, एस क्यूब, ओके, तो यहाँ पे क्या आने वाला है? देन यू हैव टू कंसिडर द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, सो विच इज बी एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी. ये आपका चेंज होगा. ओके, सो इट डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. सो इफ द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज से n, then numerator you have to consider a polynomial of degree n minus 1. And the last case, if that same non-linear factor is present with the repetition, okay, तो आपको करना क्या है? पावर 1 से स्टार्ट करो until and unless you will get that highest power. जैसे यहाँ पे 2 है तो 1 2, अगर यहाँ पे 3 आता है तो यहाँ पे 1 2 3 ऐसे टर्म्स वहाँ पे आने वाले हैं. ठीक है, ओके, एंड नाउ हाँ, एंड न्यूमरेटर, ओके, दैट न्यूमरेटर इज टोटली डिपेंड ऑन दिस फैक्टर, है ना. तो ए स्क्वायर प्लस बी है तो न्यूमरेटर आपका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 का ही आने वाला है. यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी है तो न्यूमरेटर आपका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 ही आने वाला है. आप इन दोनों में अच्छे से चेक करो. ओके, ऊपर कांस्टेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है. यहाँ पे ऊपर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये नॉन लीनियर फैक्टर ऑफ डिग्री 2. ओके, नाउ आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. ये हुआ था क्या एग्जांपल? Yes. Okay, so I think I will skip this as it's a trivial example. Let me take the other question. Yeah, so next question is like this: find the using the partial fraction, find the Laplace inverse Laplace transform of this function. Okay, तो यहाँ पे आपको clearly denominator में दिखाई दे रहा है. So all these factors are linear, सबकी डिग्री 1 है. So all these factors are linear. Therefore we find its Laplace inverse using partial fraction. Okay, so it is a partial fraction corresponding to this a upon first factor plus b upon second factor plus c upon third factor. Okay, तो आपका जो रेगुलर अप्रोच है वो क्या होता है? जस्ट मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय दिस डिनोमिनेटर. इससे मल्टीप्लाई करो, दैट इज s minus 2 2s minus 1 and s plus 1. देन यू विल गेट अ इक्वेशन लाइक दिस. और फिर इस इक्वेशन में हर एक का रूट आपको पुट करना है. जस्ट पुट s इज इक्वल टू 2
just put s is equal to, इसका रूट क्या है 1/2 and just put s is equal to -1. So put all these roots like say s equal to 2, s is equal to 1/2 and s equal to -1, then you will get the values of a, values of b and value of c. Okay, I think यहाँ पे कुछ तो टाइपिंग मिस्टेक है. Okay, I will correct it. यहाँ पे कुछ तो -1 है. Yeah, so this -1 is there. So यहाँ पे -1 है और I think this is also -1 square. Okay, so just put s is equal to -1, then s is equal to 1/2 and s is equal to 2. You will get a equal to 5, b equal to -3 and c equal to 2. So that is one approach. तो इस approach से भी आप a b c calculate कर सकते हो. Okay, and there is one more approach which is this. अगर आपको a calculate करना है तो आप बस क्या करो, okay, जस्ट डिलीट दिस फैक्टर s-2, एक के नीचे जो भी फैक्टर आ रहा है उसको आप डिलीट करो. ओके, जस्ट डिलीट दैट फैक्टर फ्रॉम LHS, देन यू विल गेट 11s² minus 2s plus 5 divided by 2s minus 1 into s plus 1, and calculate this value at the root of this factor, that is s equal to 2. a मिल जाएगा. ओके, b का फॉर्मूला क्या है? ओके, b के नीचे कौन सा फैक्टर है? 2s minus 1. So just delete this factor from LHS, then you will get 11s² minus 2s plus 5. Now I have to delete 2s minus 1, then here I will get s minus 2, s plus 1, and calculate this value at root of this factor, that is s is equal to 1/2. So that is the value of b. And in case of c also repeat the same logic, that delete the factor s plus 1 from this LHS, then you will get 11s² minus 2s plus 5 divided by s minus 2 into 2s minus 1. ओके, एंड कैलकुलेट एट s इज इक्वल टू -1. ठीक है, आप चेक करो ये तीनों वैल्यू सेम ही आएंगे. सो इट डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन से फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है, बट यू कैन यूज दिस टेक्निक ऑल्सो. दिस इज द फास्ट अप्रोच, क्योंकि ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको. आप बस ये तीनों फॉर्मूले से आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा. एक बार आपने कैल्सी में ये सेट किया तो इजीली सॉल्व हो जाएगा. आपको बस नीचे का पार्ट चेंज करना है कैल्सी में, एंड कैल्क बटन प्रेस करके s इज इक्वल टू 2 रखो, s इक्वल टू 1/2 रखो और s इक्वल टू 1 रखो. ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो. ओके, नाउ दिस आर द वैल्यूज ऑफ a b c, देन दिस बिकम 5 अपॉन s minus 2 plus -3 upon 2s minus 1 plus 2 upon this. Now taking the Laplace inverse of both side, so the Laplace inverse of this given problem is equal to Laplace inverse of this, and can anyone tell me the final answer? तो क्या आने वाला है यहाँ पे? 5 into what? What is Laplace inverse of 1 upon s minus 2? हाँ, what is Laplace inverse of 1 upon s minus 2? क्या है इसका Laplace inverse Laplace? Yes, anyone? बोलो बोलो. What is Laplace inverse of 1 upon s minus 2? बोलो. Anyone? What is Laplace? e raised to 2t. In a similar way, -3. इसका क्या आएगा सेकंड का? सेकंड का क्या आएगा? बोलो. What is the Laplace inverse of this second term? 1 upon 2. 3/2 into e raised to half t. हाँ, plus half t. Good. Plus half t. हाँ, and last में e raised to minus t. Okay, so this is the answer. Okay, and ठीक है. Okay, that is all about the inverse Laplace transform using partial fraction. ठीक है, और ज़्यादा आपको लीनियर के ही क्वेश्चन देख लें. Okay, don't focus more on that non-linear factor. And now the last topic is actually the application. So the application of this Laplace transform to solve or to find the solution of linear differential equation. But here we consider that linear differential equation with some initial condition. Okay, so what is the difference between your first unit and this unit? Okay, मैं आपको डायरेक्टली दिखाता. Okay, what is the difference between this first unit and this unit? यहाँ पे जो differential equation आने वाला वो इस फॉर्म में आने वाला. So here we have given that differential equation with some initial condition. Okay, so in case of initial condition only, you can find the solution of that differential equation using Laplace transform. ओके, तो आप ये याद रखो कि यूनिट 1 के क्वेश्चन आप इससे सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी इनिशियल कंडीशन इन केस ऑफ यूनिट 1. यूनिट 1 में जो आपने लर्न किया दैट इज द जनरल अप्रोच. ओके, एंड इन दैट केस देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग टू एनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, बट इन दिस केस इफ वी हैव गिवन द इनिशियल कंडीशन
in that case there exists only one solution corresponding to that differential equation. Okay, I hope आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है. जब भी किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में इनिशियल कंडीशन गिवन होती है तो उस डिफरेंशियल के करस्पॉन्डिंग एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट होता है. विदाउट इनिशियल कंडीशन इन दैट केस यू विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू कैनॉट अप्लाई द सेम टेक्निक डायरेक्टली टू दैट यूनिट 1. ओके, एंड नाउ लेट अस फोकस ऑन द अप्रोच कि कैसे आपको ये सब कुछ करना है. सो these are the steps. Okay, these are the steps to find the solution of linear differential equation using the inverse Laplace transform. तो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले आपको करना क्या है, जस्ट टेक द Laplace transform on both side. ओके, जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको करना क्या है, जस्ट टेक द Laplace transform on both side. नेक्स्ट आपको क्या करना है, ओके, जो इनिशियल कंडीशंस आपको गिवन है y ऑफ 0 की वैल्यू या कुछ भी होगा y डैश ऑफ a की वैल्यू लाइक दैट, जो भी आपके पास इनिशियल कंडीशन गिवन है, ऐसे जनरल इनिशियल कंडीशन आते हैं इक्वल टू समथिंग इक्वल टू समथिंग इक्वल टू समथिंग. सो यूज और पुट द वैल्यूज ऑफ इनिशियल कंडीशन इन सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है, सिंप्लीफाई करके कैपिटल y ऑफ s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ओके, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कैपिटल y ऑफ s हियर? ये किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है? जस्ट फ्रॉम दिस कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज कैपिटल y ऑफ s किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट? हाँ, capital Y of S is the Laplace transform of what? The Laplace transform of f of t is capital F of S. Correct? Then what is the function where the Laplace transform is capital Y of S? Function क्या होगा ये? obviously Y of t. ठीक है, तो y क्या होता है? स्मॉल y इज एक्चुअली सोल्यूशन ऑफ योर गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो उस y का जो लैप्लास होगा वो आपने किससे डिनोट किया है? कैपिटल Y से. ओके, यूजिंग द सेम टेक्निक. स्मॉल f का लैप्लास आता है कैपिटल F, कैपिटल F का इनवर्स आता है स्मॉल f, है ना. वैसे स्मॉल y का लैप्लास आता है कैपिटल Y, कैपिटल Y का इनवर्स आने वाला है स्मॉल y. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस नोटेशन. ओके, और इन डिटेल में आपको मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो नाउ ऑनवर्ड्स ऑलवेज रिमेंबर y एक्चुअली आपका सोल्यूशन है जो आपको कैलकुलेट करना है. y इज योर सोल्यूशन जो आपको कैलकुलेट करना है. एंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस y ऑफ t इज एक्चुअली कैपिटल Y ऑफ s. लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t इज कैपिटल Y ऑफ s. ओके, और कुछ रिजल्ट आपने ऑलरेडी लर्न किए थे लैप्लास में. ओके, आई वांट दोज रिजल्ट्स फ्रॉम योर साइड. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश ऑफ t? Anyone? If you know this formula, please tell me this. Also, I need the Laplace transform of f double dash of t. Also, I need the Laplace transform of f triple dash of t. At least दो केस में तो बोलो, ये आपको चलो गेस हो जाएगा. Okay, anyone can try this. What is Laplace transform of f dash of t? Derivative of a function. क्या आता है Laplace transform? बोलो बोलो, रॉन्ग आने दो. Okay. S f of s minus f of 0. Good. S f of s minus f of 0. अभी यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस f आपके पास यहाँ पे ऐसे टर्म्स आने वाले हैं, dy by dt. इट इज सिमिलर टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म y डैश ऑफ t. ठीक है, एंड इफ आई कंपेयर विद दिस, लेट मी चेक एनीवन इज देयर इन वेटिंग रूम और नॉट. एंड इफ यू चेक दिस, और इफ यू कंपेयर विद दिस फॉर्मूला, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? यस, यहाँ पे स्मॉल y है तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल Y माइनस y एट 0. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव. ठीक है, इन ए सिमिलर वे द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड डेरिवेटिव d2y बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डबल डैश ऑफ t. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? पहले मैं इस केस में लिख लेता हूँ. तो इसका फॉर्मूला s स्क्वायर कैपिटल F of s माइनस s f of 0 minus f dash of 0. So here I have to consider s capital Y of s minus s into y at 0 minus y dash of 0. And similarly I can write the Laplace transform for third derivative d cube y by dt cube which is equal to s, सॉरी यहाँ पे क्या आता है? s स्क्वायर आता है. हाँ, तो वो क्या आता है? s क्यूब कैपिटल y ऑफ s माइनस s स्क्वायर इंटू y ऑफ 0 माइनस s इंटू y डैश ऑफ 0 माइनस y डबल डैश ऑफ 0. ठीक है, सो
ये बस मैंने जो आपका लाप्लास के रिजल्ट थे वहां से मैंने कॉपी पेस्ट किया है। ओके, हियर आई जस्ट चेंज दैट नोटेशन। यहाँ पे आपको एग्जाम में y भी हो सकता है, आपको एग्जाम में x भी हो सकता है, कुछ भी वेरिएबल यहाँ पे y की जगह पे आ सकता है। ओके, एंड नाउ आई विल डायरेक्टली टेक वन एग्जांपल। सो दिस फॉर्मूलाज आर देयर। ठीक है, नाउ आई विल डायरेक्टली टेक वन एग्जांपल। तो आपका एक्चुअल क्वेश्चन क्या है? ओके, आपको ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका आपको सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, बट बाय यूजिंग व्हाट? लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आपके स्टेप्स क्या थे? पहले आपको करना क्या है? टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, फिर उसके बाद कैपिटल y ऑफ s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद आपको करना क्या है? फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो वो जो y ऑफ s था उसके आगे मुझे एक्सप्लेन करना था एक्चुअली। तो कैपिटल y ऑफ s आने के बाद आपको यहाँ पे y ऑफ s की वैल्यू मिल जाएगी व्हेन यू टेक अ लैप्लास ऑन बोथ साइड। इसके आगे करना क्या है? जस्ट टेक द इनवर्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे y ऑफ s का इनवर्स क्या आएगा? ऑब्वियसली y ऑफ t आएगा। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। या सिंपली एक बार लैप्लास लेना है, एक बार इनवर्स लैप्लास लेना है, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। एक बार लैप्लास लेना है, एक बार इनवर्स लैप्लास लेना है, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, सो लेट मी स्टार्ट द सॉल्यूशन. Okay, first I will simplify this differential equation. Simplify means I will write with the usual notation, that is d2y by dt square minus 3 into dy by dt plus 2 into y of t is equal to 12 e raised to minus 2t. Now take the Laplace transform on both side, correct? So the Laplace transform of d2y by dt square minus 3 into Laplace transform of dy by dt plus 2 into Laplace transform of y of t is equal to 12 into Laplace transform of e raised to minus 2t. Now just use those formulas. The double derivative, sorry, the Laplace transform of the Laplace transform of second derivative is actually s square capital Y of s minus s into y of 0 minus y dash of 0. Okay, the Laplace transform of first derivative is s into y of s minus y of 0. Laplace transform of y of t is capital Y of s and equal to 12 upon we know that the Laplace transform of e raised to at, मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया ये. So this Laplace transform is 1 upon s minus a, so that become 12 upon s minus of minus 2, that become plus 2. Now in next step just put the value of y of 0 which is 2 and put the value of y dash of 0 which is 6. Okay, then we'll get something like this. Okay, now here from here in LHS just calculate the value of or take that y of s common. Take that y of s common, then you will get s square minus 3s plus 2 into y of s. Then what is remaining? क्या remaining है फिर? minus 2s minus 6 minus 3 minus 2 plus 6 is equal to 12 upon s plus 2. So plus 6 minus 6 कैंसिल हो जाएगा, बट आपको चाहिए y ऑफ s की वैल्यू, तो वो कैलकुलेट करने के लिए माइनस 2s को राइट साइड में शिफ्ट करो. ठीक है, सो s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 कैपिटल y ऑफ s इज इक्वल टू 12 अपॉन s प्लस 2 प्लस 2s. ओके, सिंप्लीफाई करो विच इज 12 प्लस 2s स्क्वायर प्लस 4s. ओके, और ये जो y ऑफ s का कोएफिशिएंट ये नीचे आ जाएगा, दैट बिकम s स्क्वायर माइनस 3s प्लस 2 एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ y ऑफ s. ओके, आई विल शो यू ऑन नेक्स्ट स्लाइड आल्सो. ठीक है, तो ये माइनस 2s को राइट साइड में शिफ्ट करो, सिंप्लीफाई करो और इस टर्म को नीचे शिफ्ट करो, यू विल गेट वैल्यू ऑफ y ऑफ s एंड द वैल्यू ऑफ y ऑफ s इज इक्वल टू दिस. ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपने बस लैप्लास लिया था दोनों साइड से. लैप्लास लेने के बाद आपके पास कैपिटल y ऑफ s की वैल्यू आ गई है, बट आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, मतलब आपको y ऑफ t कैलकुलेट करना है. y ऑफ t कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ पे इनवर्स लेना होगा, बिकॉज द लैप्लास इनवर्स ऑफ y ऑफ s इज एक्चुअली y ऑफ t. ओके, तो यहाँ पे दोनों साइड पे आपको इनवर्स लेके सॉल्व करना है. ओके, तो LHS तो सॉल्व हो जाएगी, RHS को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे मुझे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना है. ओके, सो फर्स्ट राइट आउट दी factorization of this polynomial which is s minus 1 into s minus 2. Now you can write the partial fraction of this. Okay, so that partial fraction is a upon first factor plus b upon second factor plus c upon third factor. Okay, can anyone tell me the values of ABC? Can you perform this? Directly बोलो मुझे ए बी सी क्या आएगा. आप कैल्सी में करो, नो नीड टू राइट दिस ऑल्सो, क्योंकि आपको एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आने वाले. कैल्सी में बस क्या करो आप? ओके, डू इट. एनीवन प्लीज टेल मी आंसर. कुछ स्टूडेंट ए का करो, कुछ स्टूडेंट बी का, कुछ स्टूडेंट सी का, ऐसे करो. कैल्सी में बस आप क्या करो? 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 12 डालो और नीचे क्या करना है? s प्लस 2 को रिमूव करना है. s माइनस 1 s माइनस 2 डालो एंड कैल्क बटन प्रेस करो, कैलकुलेट एट s इक्वल टू माइनस 2. डू दैट. देख के समझ में आता है, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ ABC.
Please some student do for A, some student do for B, some students please do for C and tell me the value of ABC. Yes, करो करो। कैल्शियम में पता है सबको कैसे करना है? कैल्शियम में सबको पता है कि नहीं? बताओ सर। हाँ बोलो क्या आ रहा है? आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास वो अभी कैल्सी का है, अदरवाइज क्या अभी लेने वाला हूँ क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हो रहा है। क्या ठीक है, बोलो आप आंसर बोलो क्या आ रहा है। एनीवन? अब कर रहे हो ना, तो ही मैं वेट कर रहा हूँ, या डायरेक्टली भी करो ना, इसमें इतना क्या है। एस इक्वल टू -2 डाल के बोलो क्या आ रहा है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए? Plus, क्या आ रहा है? plus 2 आ रहा है। 1, नहीं 1 to 12, 12। 12। ओके ओके सर। नेक्स्ट का s इक्वल टू 1 पुट करके, s इक्वल टू 1 पुट करके तो नीचे तो 3n माइनस -3 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे 4 6 बोलो 7, एंड c की -6, okay, so 12 7 and -6. Let me check this. फर्स्ट का 1 आ रहा है क्या? मेरे पास कुछ रॉन्ग है क्या? फर्स्ट का एक बार चेक करो, s+2 का पुट s इक्वल टू -2 चेक करो, इसमें चेक करो और मुझे बोलो करेक्ट है या रॉन्ग है ये। Please give me confirmation. Just put s equal to -2 and tell me whether it is correct or whether it is wrong. जो भी put s is equal to -2. चेक करो जल्दी। ओके क्या आ रहा है? 1 ही आ रहा है ना? यस सर, 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। ओके ओके ठीक है। सो आई थिंक द करेक्ट आंसर इज a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू -6। ओके ठीक है, इतने मिस्टेक मेरे से भी होते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। या कम टू नेक्स्ट देन, सो यहाँ पे आपके पास y ऑफ s की वैल्यू आ गई है। नाउ टेकिंग लैप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड, सो द लैप्लास इनवर्स ऑफ y ऑफ s इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस होल पार्ट, है ना। एंड व्हाट इज दिस? 1 एज इट इज, 1/s+2 का लैप्लास इनवर्स आता है e−2t प्लस 7 यू कैन टेक आउटसाइड, एंड s-2 का लैप्लास इनवर्स आता है e−2t -6 आउटसाइड, एंड द लैप्लास इनवर्स ऑफ दिस इज e−t। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल y ऑफ t। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। विल टेक वन मोर एग्जाम्पल। अब इस केस में ओके, यहाँ पे बस उन्होंने देते समय x में दिया। ठीक है, सो इन फर्स्ट स्टेप टेकिंग लैप्लास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, सो विल गेट समथिंग लाइक दिस, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 9 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t इक्वल टू 18 इंटू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t। नाउ द फॉर्मूला इज व्हाट? इसका क्या आने वाला है? s स्क्वायर कैपिटल x ऑफ s माइनस s इंटू x ऑफ 0 माइनस x डैश ऑफ 0 प्लस 9 कैपिटल x ऑफ s इक्वल टू 18 बाय s स्क्वायर, बिकॉज the Laplace transform of t raised to n is gamma of n plus 1 upon s raised to n plus 1. You can refer this formula. Now put the initial condition. यहाँ पे आपके पास x of 0 की वैल्यू है, बट हियर वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ x डैश ऑफ 0, दैट इज द प्रॉब्लम। यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे इस केस में राइट नाउ वी डोंट हैव द वैल्यू फॉर x डैश ऑफ 0। तो फिर कैसे करोगे? तो आप क्या करो, x ऑफ 0 की तो वैल्यू आपके पास है, तो इसके जगह पे 0 पुट करो। अभी ये आपको पता नहीं है, तो इसके जगह पे आप कैपिटल A एज्यूम करो। सपोज दैट नंबर इज कैपिटल A, और पूरा क्वेश्चन आप कंप्लीट करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो वैल्यू आपके पास नहीं गिवन है उसके जगह पे आप कैपिटल A कंसिडर करके जस्ट कंप्लीट दिस होल प्रॉब्लम। Okay, so in the next step what I will do, I will just consider that value to be capital A, and then
आई हैव टू कंप्लीट दिस होल प्रॉब्लम. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में एक्स ऑफ एस कॉमन लेके विल गेट एस स्क्वायर प्लस 9. जो कैपिटल ए था वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. इसके आगे थोड़ा इनवर्स में आपको वर्कआउट करना होगा. या ठीक है, बस ट्राई टू रिमेंबर द अप्रोच. तो एक्स ऑफ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए अपॉन दिस फैक्टर प्लस 18 अपॉन दिस फैक्टर. तो अभी पहले नाउ वी हैव टू टेक द लैप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड. ठीक है, बट बिफोर टेकिंग दैट लैप्लास इनवर्स आई नीड टू सिंप्लीफाई दिस सेकंड पार्ट, क्योंकि इसको मुझे अच्छे से सिंप्लीफाई करना होगा तब जाके ये सॉल्व होगा. तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्लस 2s² एंड माइनस 2s² ऐड करता हूँ. ओके, देन दिस आई कैन राइट इट एज हियर आई जस्ट ऐड प्लस 2s² एंड माइनस 2s². इस पार्ट को सेपरेट करो, माइनस 2 अपॉन दिस. ठीक है, तो क्या मिलेगा, माइनस 2 वैसा रहेगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट माइनस 2 अपॉन स्क्वायर प्लस 9. फिर इस पार्ट में से 2 कॉमन ले लो, इन ब्रैकेट यू विल गेट स्क्वायर प्लस 9 एंड डिवाइडेड बाय दिस होल टर्म स्क्वायर इंटू स्क्वायर प्लस 9. ये बस एडजस्टमेंट है, दिस इज जस्ट द एडजस्टमेंट. ठीक है, या सिंपली आप इसको एक पार्शियल फ्रैक्शन जैसे बोल सकते हो ऊपर, बट दिस इज नॉट अ पार्शियल फ्रैक्शन, ये बस एक एडजस्टमेंट है. सो दिस होल 18 अपॉन स्क्वायर इंटू स्क्वायर प्लस 9 कैन बी रिटर्न बाय दिस वे. ठीक है, सो फाइनली इट बिकम, तो यहाँ पे एक कॉमन डिनोमिनेटर आ रहा है, तो दिस कैन बी रिटन एज a माइनस 2 अपॉन स्क्वायर प्लस 9. और यहाँ पे सिंप्लीफाई होकर आपको क्या मिलेगा, 2 अपॉन स्क्वायर. सो दिस इज जस्ट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस पार्ट. ठीक है, क्योंकि ये सॉल्व होना चाहिए. एंड नाउ दिस इज योर कैपिटल एक्स ऑफ एस. नाउ टेकिंग लैप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो एक्स ऑफ एस का लैप्लास इनवर्स आता है एक्स ऑफ टी एंड इट इज इक्वल टू द लैप्लास इनवर्स ऑफ a माइनस 2 अपॉन स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2. यू कैन टेक आउटसाइड लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर. यहाँ पे भी ये a माइनस 2 आप बाहर ले सकते थे. ठीक है, सो विच इज इक्वल टू और विच इम्प्लाइज एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एज दिस a माइनस 2 इज कॉन्स्टेंट, सो दैट यू कैन टेक आउटसाइड. एंड 1 अपॉन स्क्वायर प्लस 9 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म याद है, व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर प्लस 9, बोलो. 1 अपॉन स्क्वायर प्लस 9 का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, अरे बोलो जब. sin 3t. हाँ, 1 अपॉन 3 साइन ऑफ 80 मीन साइन ऑफ 3t एंड प्लस 2 एज इट इज. लैप्लास सॉरी इनवर्स, हाँ इनवर्स मैंने शायद लैप्लास बोला था. हाँ, सो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर प्लस 9, so that will be 1/3 sin of 80. and the Laplace inverse of 1 upon square वो क्या आता है, t raised to this number minus 1, so 1 upon that factorial. ठीक है, so x of t is equal to a minus 2/3 sin of 3t into 2t. ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर. बट अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, हियर द कैपिटल ए इज स्टिल अननोन, है ना, आपको पता ही नहीं कैपिटल ए आपका क्या है. तो अभी आप वो सेकंड कंडीशन यूज करो. ओके, तो सेकंड कंडीशन आई थिंक क्या थी, x at π/2 is equal to 0. This is your second condition. So just put x is equal to π/2 या t equal to π/2 in this equation. Just put x is equal to π/2 in this equation. Then on LHS you will get x at π/2 is equal to this is π/2 minus 2 upon 3 sin of 3 π/2 plus 2 into π/2. But x at π/2 is 0, so this is 0. π/2 minus 2 is actually ठीक है, let it be π/2 minus 2 into this 1/3 sin 3 π/2 क्या है, sin 3 π/2. What is sin 3 π/2? बोलो जल्दी. What is sin 3 π/2? अरे क्या किया मैंने, ये रॉन्ग लिखा है ना. कब बोलोगे आप, कैपिटल ए के जगह पे मैंने पुट किया. हाँ, लेट मी इरेज. जो कैलकुलेट करना है उसके जगह पे पुट करने के बाद क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं ना. सो हियर आई हैव टू पुट t equal to π/2, so that can be written as, just 1 minute. So that can be written as, so this capital A is a constant, so that value is as it is sin
3 इंटू पाई बाय 2 प्लस 2 इंटू पाई बाय 2, क्योंकि आपके पास ये कंडीशन गिवन थी x एट पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स x एट t इक्वल टू 0 व्हेन t इक्वल टू पाई बाय 2, तो मैंने वही किया है, जस्ट पुट t इक्वल टू पाई बाय 2 एंड कंप्लीट करो. सो x एट पाई बाय 2 इज 0 विच इज इक्वल टू a माइनस 2 बाय 3 साइन 3 पाई बाय 2 इज आई थिंक माइनस 1 प्लस पाई. ओके, सो दैट बिकम, तो क्या मिलेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा. सो a माइनस 2 बाय 3 is equal to pi, that implies capital A is equal to 3 pi plus 2. तो यहाँ पे आपके पास कैपिटल A की वैल्यू आ चुकी है, दिस विच इज 3 pi plus 2. तो अगर आप यहाँ पे डाल देते हो 3 pi plus 2, तो ये plus 2 minus 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. तो x of t का फाइनल आंसर क्या है, x of t इज इक्वल टू यहाँ पे रहता है pi ओनली, pi sin 3t plus 2t. ठीक है, सो इट इज देयर इन स्लाइड ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो, a की वैल्यू कैलकुलेट करो, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, दैट इम्प्लाइज कैपिटल A इज इक्वल टू 3 पाई बाय प्लस 2. ओके, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो एंड यू विल गेट दिस एज योर फाइनल आंसर. ठीक है, तो ये ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे एक वैल्यू आपके पास गिवन नहीं थी, है ना, वी डोंट हैव द इनिशियल कंडीशन एट फर्स्ट डेरिवेटिव. ओके, बट स्टिल वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, एंड आई थिंक आई विल स्किप दिस, ये रिपीटेशन में. ओके, I will take this. So this is the last problem as far as this unit is concerned, and then we'll stop. ठीक है, next lecture onwards we'll start the statistics and probability. तो कल के लेक्चर में सबके पास कैलसी होना चाहिए. Okay, now the using Laplace transform solve the or find the solution of this differential equation d2y by dt square plus 3y of t plus 2. यहाँ पे थोड़ा अलग आ रहा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्म में दिया. ठीक है, now let us go with our regular approach. So taking Laplace transform on both sides, so you will get something like this. अभी मुझे अभी आप बोलो कि क्या क्या यहाँ पे आने वाला है. So Laplace transform of dy by dt, या आपको मैं बोल देता हूँ that is s capital y of s minus y at 0 plus 3 into capital Y of s plus 2. What is value of this? बोलो. Now you have to tell me this. What is value of Laplace transform of integral of a function? क्या लिखना है यहाँ पे, क्या लिखना है बोलो. Laplace transform of integral of a function क्या आने वाला है, f of s x. गुड, क्योंकि आपको पता है कि Laplace transform of 0 to t f of t dt is actually the Laplace transform of f of t upon s. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, कैपिटल y ऑफ s बाय s. ओके, और t का तो आपको पता ही है क्या है, ओ गैमा ऑफ n प्लस 1 मीन्स 1 अपॉन s स्क्वायर. ठीक है, या एंड ओके, सो आगे बस आप सॉल्व करो. y ऑफ 0 की वैल्यू गिवन है, y ऑफ 0 इज 0, पुट करो, y ऑफ s की वैल्यू कैलकुलेट करो, इनवर्स ले लो एंड कंप्लीट करो. ओके, सो y ऑफ 0 की वैल्यू पुट करो, y of s आपको मिल जाएगा, y of is something like this, है ना, that you can factorize. okay, using partial fraction, sorry, then you can write the partial fraction of 1 upon s into s plus 1 s plus 2. ठीक है, तो a b c के वैल्यूज यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है, टेकिंग Laplace इनवर्स ऑन बोथ साइड. ओके, एंड योर फाइनल आंसर इज दिस 1/2 माइनस e रेज टू, यहाँ पे हाँ e रेज टू माइनस t, 1/2 e रेज टू माइनस 2t हो गया. ठीक है, एनिमेशन बस रिवर्स हो गया, बट दैट यू कैन कंप्लीट. ठीक है, दिस आर सम मोर प्रॉब्लम्स दैट इज फॉर प्रैक्टिस, और यू कैन टेक दिस एज अ होमवर्क. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन. ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस वन ऑफ द लेंदी यूनिट.